So today is lecture number 1 of the 12th chapter, that is magnetism of 11th standard. Now, what is magnetism, or where did the word magnetism come from? Magnetism came from the word which is called magnetite. So there was an element which was found on the surface of the earth, and that was called as magnetite. And that magnetite is called, some people are asking me some doubts. Because the chapter's name is on the screen, I think everyone can see. Can't everybody see the name of the chapter? I have written very clearly on the screen. Is the screen visible, everyone? Yes. So those who cannot see it, please look at the screen. If you are in your sleep, you may not see it here. So now it's called magnetism only. Yeah. So in magnetism, so there was something called as magnetite, which was found in nature, and it was seen to be attracting metals. That's where the word comes as magnetism. So they take it from the name of the metal, that is magnetite. So magnetite से वो लोग वो नाम लेते हैं, which is called magnetism. So let's come to what happened or who were responsible for this. So the first scientist, his name was William Gilbert, somewhere around the year 1544, to 1603 के बीच में. He said कि we have some phenomena called as magnetism. मतलब the first person to say कि ऐसा कुछ चीज है जो metals को attract कर रहा है. He started seriously thinking about it and seriously understanding magnetic field, कि एक मैग्नेट के चारों तरफ कोई फील्ड है और वो मेटल्स को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करता है. ये जो पहली बार जिसने इसकी खोज की, उसका नाम है विलियम गिलबर्ट. सो दैट ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिड दैट. उसने ये भी बताया कि अर्थ इज अ मैग्नेट. आई होप यू नो दैट अर्थ इज अ मैग्नेट. हमें कैसे पता चलता है कि हम एक मैग्नेटिक नीडल लेते हैं, आपने देखा रहेगा कंपस लेते हैं, और वो कंपस हमें नॉर्थ साउथ सब डायरेक्शन दिखाता है. सो वी नो दैट अर्थ इज आल्सो हैविंग सम सॉर्ट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड. So he said that earth also has a magnetic field, but it is not very strong. It has a weak magnetic field. But earth bhi ek magnet hai. So that's why I've shown you the picture of earth here, because he was the first person who said that earth also has some magnetic field around it, but may not be very, very strong. So he was one of the physicists, William Gilbert, who started the concept of magnetism. दूसरा, ये very important person है. His name is Hans Ørsted. We are going to study something called Ørsted's principles in another chapter. Ørsted suggested कि जहां जहां करंट है वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड है. उसने कहा कि जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां वहां मैग्नेटिज्म है. So he brought about a relation between electricity and magnetism. So he's a very a very important discovery done by this physicist, a Danish physicist, Hans Ørsted. So there is something called as Ørsted's principle also, which I will teach you later on. So Ørsted said that jahan jahan electricity hai wahan wahan magnetism hai. So who was the first one? The first guy who brought about, William Gilbert. He was the one who started off the concept. Second is Hans Ørsted, who said that there is a relation between electricity and magnetism. The third person on our list, or the most important, we say in today's life, is James Clerk Maxwell. There's something called Maxwell's equations. He is the one because of which we have electromagnetic waves. If you know the concept of electricity and magnetism together.
the one who said that we have waves in nature. So this is called James Clerk Maxwell. So no, you don't have to write anything. You just have to listen today, because I'll tell you when to write. So the first one was William Gilbert, second one was Hans Orsted, and the third one was James Clerk Maxwell. You should know what they did, okay, because that is something that you should be aware of. Yes, Hans Christian Orsted, correct, Govind. So you should know these people, okay, because they brought about a correlation. Now, starting off with the chapter. So whenever I say magnet, this is your understanding, you know. So you have either a bar magnet that you see on the screen, or you have what is called as a horseshoe magnet. Yes, Prashant, what happened? Why are you writing that? It's okay. If you want to ask something, you can obviously message me. What is this regarding? One minute. I just pause because this boy has some. So now, if you look at the magnet over here, अगर आप पिक्चर की तरफ देखेंगे, so can you tell me what do you see on the screen? इनके नाम क्या है? इनको आप पहचानते ही रहेंगे. ये क्या है? स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? ओके, कुछ लोगों को नॉर्थ और साउथ पोल दिख रहे हैं, कुछ लोगों को बार मैग्नेट दिख रहा है, कुछ लोगों को हॉर्सशू मैग्नेट दिख रहा है, कुछ लोगों को दोनों दिख रहा है. I hope you can see both. You can see a horseshoe magnet as well as a bar magnet. So what you see here is nothing but the bar magnet, and what you see here is nothing but the horseshoe magnet. Right? I hope you know why it is called horseshoe magnet. ये भी आपको पता रहेगा, वो horses के पैर पे लगाते हैं. I hope you have seen it. So that's what it's called as a horseshoe magnet, and that's called as a bar magnet. So ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने यहाँ पे लिख के रखा है या यहाँ पे लिख के रखा है, इट इज कंप्लीटली फिक्टिशियस. द वर्ड जो टेक्स्ट बुक में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, द वर्ड इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज फिक्टिशियस. फिक्टिशियस मतलब इट इज अज्यूम्ड टू बी नॉर्थ एंड अज्यूम टू बी साउथ. किसी को नहीं पता है कि कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है. हम अज्यूम करके लेते, एक साइड नॉर्थ है, दूसरा साइड साउथ है. उल्टा भी हो सकता है, ये साइड नॉर्थ हो सकता है, वो साइड. सो फिक्टिशियस वर्ड यूज करते हैं, वी यूज द वर्ड फिक्टिशियस. सो फिक्टिशियस का मतलब होता है अज्यूम्ड, वी डोंट नो. So we always call it as fictitious North Pole and fictitious South Pole. So that is something for you to understand. Now, when you imagine what is happening over here, this is nothing but iron filings लेते हैं, iron को ऐसे छीलते हैं उसको, you know, और उसके बीच में अगर मैग्नेट को रख दिया, सो जो हमें मिल रहा है ये कुछ ऐसा दिखेगा. हैव यू सीन सम काइंड ऑफ थिंग, यू नो, जैसे मेटल्स को वो अट्रैक्ट करता है. अगर आप बहुत सारे आयन फाइलिंग्स डालेंगे, नो, आयन को एकदम छील के, यू नो, एकदम पाउडर करके उसके बीच में अगर आप दो मैग्नेट को रख देंगे, so we can say that what we are going to see is exactly what you see on the screen. ये विजुअलाइजेशन जो मैंने आपको दिया है, ये हमेशा दिमाग में रखना है. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर देखो कैसे जम रहा है. इफ यू सी दिस पोर्शन, इफ आई लुक एट दिस पोर्शन, ये पोर्शन में बहुत सारे ऐसे, यू नो, लाइंस जैसे कुछ है यहाँ पे, ऐसे इस तरीके से उनकी अट्रैक्शन है, क्योंकि एक तरफ नॉर्थ पोल है और दूसरी तरफ साउथ पोल है. उल्टा भी हो सकता है, एक नॉर्थ हो सकता है, बट ये दोनों अनलाइक पोल्स हैं. और आपको दिखेगा कि किस तरीके से ये फाइलिंग्स एक काइंड ऑफ डायरेक्शंस बना रहे हैं, एक लाइंस बना रहे हैं.
So these are nothing but the field. इसको क्या कहते हैं? Magnetic field. मैग्नेट के चारों तरफ कुछ तो है जिसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं. So this is nothing but the magnetic field. So you must have studied this. Yes, you must have studied it in school. 10th standard में आपने पढ़ा रहेगा the concept of magnetism. So I can show you some more pictures to make you further understand on how the iron filings will behave in the presence of a magnet. So these pictures are for you to keep in your mind ताकि आपको वो field को समझने के लिए ये बहुत काम आएगा. So let's go to some points regarding magnetism. This is where we start writing. Okay, so what is आज आप pay attention करें. I hope all of you have the textbook. So I've taken it from the textbook, so you don't have to exactly write everything. Okay, so this is from the textbook. So the first point here is that every magnet, regardless of its size, छोटा magnet हो, बड़ा magnet हो, will have always two poles. एक होगा north pole और दूसरा होगा south pole. अगर मैंने इसको तोड़ा राइट साइड पे, जैसे आपको दिख रहा है, पिक्चर्स दिख रहा है कि मैंने इसको तोड़ा, कभी भी नॉर्थ और साउथ अलग नहीं हो सकते. मतलब कितना भी तोड़ा तो इधर साउथ होगा फिर नॉर्थ होगा. फिर इसको वापस तोड़ा हमने, छोटे 4 पीसेस में कर दिया, फिर भी आपको साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ मिलेगा. एज अ फिजिक्स स्टूडेंट आप बोलोगे, क्या वर्ड यूज करने वाले आप? मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. क्या बोलने वाले हो? Monopole does not exist. So the word that you are going to say is monopoles do not exist. किसमें? मैग्नेटिज्म में एक सिंगल पोल कभी नहीं हो सकता है. जहां नॉर्थ है वहां साउथ आएगा ही. So that is something which is very very important. That is our point number 2. फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मैग्नेट कितना भी छोटा हो उसका हमेशा एक साइड नॉर्थ रहेगा और दूसरा साइड साउथ रहेगा. दिमाग में बैठ गया? पहला पॉइंट ये है कि हमेशा देयर विल बी अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल. सेकंड, यस करेक्ट. सेकेंड, इफ अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू वन और टू पीसेस, मतलब मैग्नेट को जब हम तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, फिर भी वहां पे एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होगा. सो पोल 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 पोल, कितने पोल आ रहे हैं? 2 पोल्स. 2 को हम लोग फिजिक्स की भाषा में डाई कहते हैं. डाई पोल. दैट्स व्हाई आज से आप मैग्नेट नहीं बोलोगे. You know, you are a physics student, so you will not call it as magnet. You will call it as magnetic dipole. आज से आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ रहा है, तो आप मैग्नेट नहीं बोलोगे. आप एज अ फिजिक्स स्टूडेंट क्या बोलने वाले हो? इट्स अ मैग्नेटिक dipole. So whenever I show you this now, you will not say it's a bar magnet, you will say it's a magnetic dipole. Whenever I ask you what are you studying, you'll say we are studying about a magnetic dipole. Di means two. So every time we study magnetism, we are basically studying about something which has two different poles, that is north pole and south pole. That's why the name given to a magnet will be called as a magnetic dipole. So this you have to remember. Now, if the magnetic poles are there, you know, whenever we have the magnetic poles, north and south, I have a picture to show you that the poles will either attract or they will repel. So, जब भी north और south, I hope you can see the screen properly. अगर आपका north और south है, देखो यहाँ पे north pole है और यहाँ पे आप देखेंगे south pole है, right? So if you can see the screen properly, and you can see that this side it is north pole and this side it is south pole. And if you look at this diagram, here it is north pole, here it is north pole.
सो नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे से, अट्रैक्ट नहीं करेंगे. सो यहाँ पे रिपल्शन दिख रहा है आपको, और यहाँ पर जो है आपको अट्रैक्शन दिख रहा है, क्योंकि लाइंस नॉर्थ से ओरिजिनेट होते साउथ पे जा रहे हैं और यहाँ से वो दूर दूर निकल के बाहर जा रहे हैं. सो नॉर्थ और नॉर्थ क्या होगा, रिपेल. नॉर्थ और साउथ क्या होगा, अट्रैक्ट. सो दिस इज द third point that is being mentioned over here, that like magnetic poles जो है repel होंगे और unlike poles तो attract होंगे. I think this is not very difficult. And the last point, जब भी एक बार magnet को freely suspend करते हैं, the diagram will tell you the meaning of freely suspending something. जैसे fan is suspended from the ceiling, so whenever you suspend something, वो कहीं से तो लटक रहा है, तो हम इसलिए बोलते हैं कि it is suspended. और वी कॉल इट एज पाइवोटेड. पाइवोटेड मतलब सिंगल पॉइंट पे वो खड़ा है, दैट इज कॉल्ड पाइवोटेड. जैसे एक मैग्नेटिक नीडल एक कंपास के अंदर कैसा होता है, एक सिंगल पॉइंट पे उसको रखते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पाइवोटेड. एंड पाइवोटेड का एक डायग्राम मैं यहाँ आपको समझाने के लिए बना सकती हूँ. दिस इज कॉल्ड पाइवोटेड. ऐसे रहेगा एक, और इसके ऊपर हम मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं. सो दिस इज कॉल्ड पाइवोटेड. दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड पाइवोटेड. तो वो क्या होता है, जब भी हम मैग्नेट को कहीं से हैंग करते हैं, वी हैंग इट फ्रॉम समवेयर, वी सस्पेंड इट फ्रॉम समवेयर, और वी पाइवोट इट फ्रॉम समवेयर, वो हमेशा डायरेक्शन नॉर्थ साउथ में आके खड़ा हो जाता है. दैट्स व्हाट द डायग्राम ऑन द राइट टेल्स यू, कि जब भी हम एक मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके खड़ा हो जाता है, यानी कि कंपास के नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में वो आके खड़ा हो जाता है. क्यों? क्योंकि अर्थ के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है. सो बेसिकली हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, तभी कभी भी कोई भी मैग्नेट को अगर हमने अर्थ पे सस्पेंड किया, देन इट विल ज्योग्राफिकली take itself into the north south direction. So I hope these points are clear. So this is something, just go through it once, read it once, so that I can proceed. Ram, your doubt will be clear when I do Earth's magnetic field. I'll tell you why. We still don't know that which is north and south. Geography also doesn't know. So I will make that clear when I do Earth's magnetic field. I'm sure. Yeah. No, you don't have to write this, Krishna. Just read it. Just read all the 4 points on the screen. That's all. Read it once. Because this is already in the book, so I don't want anybody to write anything. Derivations जब मैं बोलूंगी या definitions जब मैं बोलूंगी तो ही आप लिखेंगे. Notebook is for that. Points to remember, definition or derivation only, and numericals obviously. रिद्धि, आइसोलेट का मतलब होता है अगर मैं इसको काट के सेपरेट करने की कोशिश कर रही हूँ तो नहीं हो रहा है ना, लाइक प्रीवियस अगर आपने देखा रहेगा. तो मैं क्या करने की कोशिश करूँ, साउथ को आइसोलेट करना मतलब अकेला करना, मतलब मुझे उसको सेपरेट करना है, तो आई कैन नॉट डू इट ओनली, प्रथम वही आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वही लास्ट पॉइंट है. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 221 है ये. इफ यू हैव द टेक्स्ट बुक, आई एम ऑन पेज नंबर 221. Yeah. So if you're suspending it, that means it's something like this, beta. On the right hand side, what you can see. So when I suspend it, it will always come and it will वो उल्टा या उल्टा पुल्टा नहीं होगा, वो हमेशा नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में आके रुक जाता है. Aditi, again, we are going to not discuss about book right now. Can we discuss it at the end of the lecture?
I think you can contact Prashant sir for it. Yeah, it'll be the best person is to contact Prashant sir regarding that. Yeah, okay. Yeah, because Nusrat, when we break the magnets, उसका जो field है कम हो जाता है बेटा. जितना लाइक जितना छोटा छोटा आप करते जाएंगे उसकी फील्ड भी तो छोटी छोटी हो जाएगी. बराबर है ना. जो आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैं आपको पिक्चर विजुअलाइजेशन दिखा रही थी, अगर इस मैग्नेट को मैंने छोटा कर दिया तो क्या फील्ड इतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा? नहीं ना. उसकी फील्ड क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी. जैसे आप बहुत बड़ा आग लगाते हैं तो उसका जो हीट आएगा क्या वो सेम होगा जितना आप एक कैंडल जला रहे हैं? नहीं ना. कैंडल का हीट कम होगा. और अगर आप बहुत बड़ा एक बॉनफायर करते हैं, कैंप फायर करते हैं, तो उसकी हीट तो ज्यादा होगी. वैसे ही हर चीज में वैसे ही होगा कि अगर आप बड़ा मैग्नेट लेते हैं, जैसे आप एक हॉर्स शू मैग्नेट लेते हैं, इसमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? आप बोलोगे हॉर्स शू स्ट्रॉन्गर है, राइट? हॉर्स शू इज स्ट्रॉन्गर एंड द बार मैग्नेट इज स्मॉलर. Point number 4 is exactly what you can see on the diagram, Aniket. Because Earth is a magnet, तो जो मैग्नेट अगर आप सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में आके खड़ा हो जाता है. दैट इज द ओनली थिंग. आपको फिलहाल इतना ही समझना है कि हर मैग्नेट जब अर्थ के इसमें सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में आके रुक जाता है. ये स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन है. यानी कि वो ईस्ट वेस्ट नहीं जाएगा, वो उल्टा नहीं होगा, वो हमेशा नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ही रहेगा. वो क्यों ऐसा है, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, that is Earth's magnetic field. So please wait till I finish Earth's magnetic field. Okay. I have just started the chapter. I have just introduced the chapter to you. So magnetic dipole moment is what we will call a magnet as. Let's come to the most important part of the chapter. That is the second point of the chapter. What is magnetic lines of force? तो जो आपको यहाँ दिख रहा था, जो फाइलिंग्स जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. सो हम मानते हैं कि इस मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड है, कुछ लाइंस है. ये इमेजिनेशन है. दिस इज कंप्लीट इमेजिनेशन. फैराडे, माइकल फैराडे ने कहा कि मैग्नेट के चारों तरफ there will be some lines which we are, it is only for our imagination, not that there are actual lines, but for physics to do calculations we have to do some assumptions, we have to visualize something. तो हम मानते हैं कि इस बार मैग्नेट के चारों तरफ कुछ लाइंस है और उन लाइंस का नाम क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. So let's look at the first line. The magnetic lines of force of a magnet or a solenoid. Do you know a solenoid? I'm sure you've come across this term. What is called as a solenoid? How many of you all know what's a solenoid? Yes, you have seen the solenoid, right? एक coil रहता है, उसके बीच में से एक magnet, you know. So solenoid is nothing but a spring or a coil of wire. So I'm sure you have come across this word. They, आप magnetic field जो है हमेशा क्लोज्ड रहता है. कैसा रहता है? क्लोज्ड रहता है. Have you started with electrostatics chapter? Anybody has started with electrostatics for you all? No, okay. So magnetic field के lines याद रखना कि हमेशा कैसा रहता है? क्लोज्ड रहता है. ओके फैलता नहीं है, वो हमेशा बंद होता है. जैसे किसी के कर्ली बाल है तो वो कैसे कर्ल होता है, वो स्प्रेड आउट नहीं होता है. ओके सो यू शुड इमेजिन समथिंग विच इज कर्ल्ड, यानी कि वो क्लोज्ड, जो जाएगा वो वापस आएगा. सो यू कैन सी लूप्स हियर. सो अगर ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है और ये साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट है तो नॉर्थ से स्टार्ट होकर वो साउथ में जाता है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज the magnetic lines of force originate, you can write this point down, the magnetic lines of force originate from the north pole and terminate on the south pole.
तो ये डायरेक्शन फिक्स है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इट टर्मिनेट्स ऑन द साउथ पोल। तो ये कुछ रूल्स हम बना रहे हैं। So you can see that all the diagrams here, we will start from the North Pole and terminate at the South Pole. And they are closed loops. So ये MCQ question होता है. So they start from the what they call magnetic lines of force. Yes, Shivanshu, that is exactly what I am doing. Please pay attention. Please don't concentrate on the chat box. Please listen to me. The magnetic lines of force originate from the North Pole and they terminate on the South Pole. कहाँ से शुरू होते हैं? नॉर्थ से शुरू होते हैं और साउथ में टर्मिनेट होते हैं. They originate from the North Pole. It is written very clearly here. They originate from the North Pole and they terminate at the South Pole. ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल भी पढ़ने वाले हैं. So that's why they have written here somewhere that, you know, positive charge or negative charge आपके book में दिया रहेगा, but that you don't concentrate right now. You look at the magnetic lines of force. So magnetic lines of force हमेशा north से निकल के, मतलब जब अभी मैं वापस जाके आपको एक मैग्नेट दिखाऊं तो आपको समझना है कि ये लाइंस कहाँ से आए? नॉर्थ से साउथ आए. The lines have originated from the north and they are going towards the south. ये आपको अभी सोचना पड़ेगा. So हम अभी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, दिमाग में डायग्राम को बिठा रहे हैं. So they start from the north and they terminate at the south pole and they form closed loops. So इस पे काफी MCQ पूछा जाता है. Is it closed? Is it spreading out? It is not spreading out, but it is close. वो ऐसे spread out हो रहा है, but वो आके हमेशा कहाँ पर terminate होगा? South में terminate होगा. Second point. ध्यान से सुनना. I hope everyone is paying attention. Suppose this is your magnet. This is the north pole of the magnet and this is the south pole of the magnet. So यहाँ से originate करके ये यहाँ पे terminate हो रहे हैं lines. So you have large number of lines which are starting from the north pole and which are terminating at the south pole. So ये ऐसे ऐसे lines हैं जो आपको imagine करना. So magnetic field, याद रखना, is a vector quantity because it will have direction. मैग्नेटिक लाइंस को हम बी बार या मैग्नेटिक फील्ड को हम बी बार से डिनोट करेंगे. आज से जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा हम उसको क्या डिनोट करेंगे? बी बार. ये क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं उसको, नाम दिया है उसको मैग्नेटिक इंडक्शन. सो ये भूलना नहीं है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, या एक दूसरा नाम है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ये आप लिख के रख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको डिनोट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं बी बार. वेक्टर क्वांटिटी है. It's called magnetic induction or it is called as magnetic flux density. Now if I draw tangent at anywhere, अगर एक point है और वहां पर मैंने एक tangent draw किया है, I hope you understand the meaning of tangent. कहीं पर भी आप एक tangent draw करते हैं, that tangent gives us the direction of magnetic field. कहीं पर भी आप एक tangent draw करते हैं on this line of force. So a tangent drawn to the line of force gives us the direction of magnetic field at that particular point. So whenever I draw a tangent at a particular point, so if I'm drawing a tangent out here, इसका डायरेक्शन देखना, वो डायरेक्शन हमें किसका डायरेक्शन बताता है? मैग्नेटिक फील्ड का. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट इन द टेक्स्ट बुक. यानी कि आपको राइट साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, मैंने ये पॉइंट पे आपको पूछा कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, यू नो, एक पॉइंट ले लिया तो आप क्या ड्रॉ करेंगे वहां पे? टेंजेंट.
So a tangent which is drawn at a point on the line of force gives us the direction of magnetic field at that point. किसी भी पॉइंट पर, कहीं पर भी जहां लाइंस है, उस लाइन पर अगर हमने एक सिंगल पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ किया, तो जो डायरेक्शन वो दिखा रहा है वही आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So a tangent drawn to the line of force at a point gives us the direction of magnetic field at that point. So I am sure in mathematics you have done what is tangent. It's a perpendicular. आप एक 90 डिग्री में ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट पे आप उसके वहां पर एक tangent ड्रॉ कर रहे हैं, perpendicular ड्रॉ कर रहे हैं. I'm sure you've done in mathematics, Sarvadeep. ज्योमेट्री में आपने 100% किया रहेगा, right? Everyone knows what is tangent, right? I hope the class knows. Yes, absolutely. Mathematics mein we have always done a tangent. A tangent is a perpendicular which is drawn, right? So a tangent which is drawn to the line of force. Yes, so everyone agrees. In 10th standard you have done what is a tangent. So a tangent drawn at a line of force at a point gives us the direction of magnetic field at that point. And B, उसको नाम दिया है हमने B bar, which is magnetic induction, या दूसरा नाम है magnetic flux density. Don't forget this. हम क्या क्या सीख रहे हैं यहाँ पे देखो. Magnetic lines originate from the North Pole and they terminate at the South Pole. They are going in circles. I think Govind, you're in a different chapter. वो जो आप right hand बता रहे, that is in a different chapter. It has nothing to do with magnetism right now. We are talking about bar magnet and you're talking about coil. So वो जो आप सोच रहे हैं ना, वो अभी नहीं आएगा. वो आएगा when I do magnetic effect of electric current. You're in a different chapter altogether. Okay? So don't mix the chapters. Whatever I teach you, study that much because that is consistent to that particular chapter. Yeah. So this has been observed, Pratham. I mean, it's an observation. Yeah. You cannot say why. It is an observation. It is a phenomenon. Phenomenon is something in nature that has been observed in nature. So that's why we say that magnetism is a phenomenon. Right, like lightning is a phenomenon. You know, what is observed in nature is what exactly we are trying to tell you. So we are going to give you names such as magnetic induction. Yeah, why it is called as. Yes, Nusrat, we'll be explaining in the further part. So B bar is called as magnetic induction or it is called as magnetic flux density. सबने लिख लिया ये बात. It's a vector quantity. And uska second point, that is a tangent drawn to the line of force at a point, gives us the direction of magnetic field at that point, which is exactly the statement that I have given here. So इस lines के बारे में और क्या चीज आप observe करते हैं? Anybody can think about what other thing are you observing in these lines? ऐसी क्या बात है इन lines में जो एकदम उठ के खड़ी होती है? कोई सोच सकता है इसके बारे में? Okay, Janish is saying that the lines are uniform. Okay, uniform is fine. They have a pattern. They are not parallel. They are fixed. They are getting bigger. Yes, so the answer I was searching for, Sneha is answering from Andheri. They do not intersect each other. Can you see that? कहीं पर भी वो intersect नहीं हो रहे. Very good, Sneha Poman. They are not intersecting only. अगर आप देखेंगे हर एक लाइन जो है कितना भी जा रहा हो बट वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते.
That is something which is very, very important. The lines of force, they do not intersect each other. So can anybody think why we are not considering intersection? क्या कोई सोच सकता है कि ये पॉइंट्स जो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, हम क्यों ये बोल रहे हैं कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट? देखो, हर एक, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, मैंने आपको थोड़ी देर बताया कि ये ओरिजिनेट होगा नॉर्थ से और साउथ से। फिर मैंने आपको बोला कि एट अ पॉइंट आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सो इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट होंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। मान लो दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, अब सवाल ये पैदा होगा कि कौन से डायरेक्शन को फॉलो करें, टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करें, क्योंकि इधर भी एक डायरेक्शन है, इधर भी एक डायरेक्शन है। दो लाइंस जब इंटरसेक्ट होते हैं तो आपको दो डायरेक्शन मिलेंगे ऑलरेडी, और फिर इनका रिजल्टेंट भी आएगा। आपने वेक्टर्स तो पढ़ा ही होगा कि दो डायरेक्शन होगा तो तीसरा रिजल्टेंट तो बनेगा ही। मतलब एक सिंगल पॉइंट के कितने डायरेक्शंस हो जाएंगे? एक सिंगल पॉइंट के कितने डायरेक्शंस आपको मिलेंगे? तीन डायरेक्शंस आपको मिलेंगे। गड़बड़ हो जाएगी भाई, कंफ्यूजन पैदा होगा। यू अंडरस्टैंड क्यों इंटरसेक्शन को इतना नहीं सोच रहे हैं? द मैग्नेटिक लाइंस को हम स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि वो इंटरसेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंटरसेक्ट हुआ तो एक सिंगल पॉइंट के तीन डायरेक्शन आएंगे, कौन सा फॉलो करेंगे भाई? इसकी वजह से हम कहते हैं बहुत क्लियरली, देखो स्क्रीन में बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि द मैग्नेटिक लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। इज दैट क्लियर? बिकॉज इंटरसेक्शन हुआ so we will not be able to come out with a definite direction, because we'll have three different directions and we don't know which one to take, and it will become very complicated. So हमें इतना complicated theory नहीं बनानी है। So direction of magnetic field कोई भी point में कैसा रहता है? यूनिक रहता है। कहीं पर भी आपको एक tangent ड्रॉ कर दिया तो वहीं पे उसका मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, which is comparatively simpler. So I hope this point is clear. That is the reason they do not intersect. The number of lines of force crossing per unit area, कितने lines cross होते हैं एक particular area, that decides the magnitude of magnetic field. कितना मैग्नेटिक लाइन आ रहा है? ज्यादा आ रहा है तो हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, कम आते हैं तो हम बोलते हैं कम है। यानी कि अगर मैंने कहा ये नॉर्थ पोल है और मैंने कहा ये साउथ पोल है, अगर यहाँ ज्यादा लाइंस है तो आप बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर यहाँ पे कम लाइंस है तो हम बोलेंगे ये वाला वीक है। लेफ्ट वाला आप बोलेंगे वीक है, राइट वाला आप बोलेंगे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जहां ज्यादा लाइंस दिखाएंगे, समझो मैंने एमसीक्यू पूछ लिया, आपको बहुत सारे लाइंस दिखाए, तो आपको समझना है कि वहां पर ज्यादा जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्राउडेड रहेगा, तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होता है। एंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, अगर आप लेफ्ट वाला एक, ये जो डायग्राम 1 है और एक डायग्राम 2 है, आप देखेंगे जो एरिया से ज्यादा, ये अगर एरिया से ज्यादा लाइंस जा रहा है तो फर्स्ट वन में आप देखो ज्यादा लाइंस इससे पास होगा, बिकॉज इसको थोड़ा स्लांटेड रखा है, और यहाँ पे मान लो एक या दो ही जा रहा है। सो जहां पे एरिया में ज्यादा लाइंस गिरते हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। दैट इज अंडरस्टूड। क्योंकि आप अभी आप जहां, मतलब आपको ऐसा सोचना है कि जहां लाइन ज्यादा गिरेंगे सरफेस पे वो मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा माना जाएगा, अगर कम गिरते हैं तो कम माना जाएगा उस सरफेस पे। सो द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया वो डिसाइड करेगा कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ज्यादा है, कम है, एंड सो ऑन। सो दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू, दैट दे विल रिपेल, अट्रैक्ट, ये तो आपको बताया ही है। देन हाउ द क्राउडेड, लेस क्राउडेड, tangent drawn, and the north or south. इसमें कुछ डाउट है तो पूछो अभी। Anybody has any doubt? These points are clear. These are called the magnetic lines of force.
Yeah. So everyone wants to switch on their camera. Everyone is dying to reach the classroom, I believe. Yeah. Interested or intersected, Ram? What do you mean by that? So, yeah, I will send the PDF. It's not an issue. I can send. Okay. So these are nothing but the magnetic lines of force. So I hope this is very clear to you. Okay. Can I proceed? So this was all about, yeah, we will discuss that better when we come to moments. I will be discussing moment. Yeah. Let's come to what is magnetic flux now. अभी ये बहुत ध्यान से सुनना है because I probably will have to, next lecture maybe show you on the screen because मैग्नेटिक फ्लक्स को समझते हैं आप सब ध्यान दें अभी. अब जब भी मैं एक ध्यान से सुनना, everyone has to listen here. Magnetic flux is a scalar quantity. I hope everyone understands when I say scalar, what does it mean? Right? Scalar quantity का मतलब क्या होता है? सिर्फ मैग्नेट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होता है इसको. ये सिर्फ क्वांटिटी की बात करता है. फॉर एग्जाम्पल आप शावर, ये जो शावर होता है ना, शावर से पानी आ रहा है, ठीक है. सो आपको आज से ऐसा सोचना है कि वो जो आ रहा है ना, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है. क्या वो इंटरसेक्ट होते हैं? यस या नो में आंसर दें. क्या वो इंटरसेक्ट होते हैं? यस या नो? नो. दैट मीन्स वो क्या है? वो आज से आपके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है. ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अभी आपने कप लिया और कप के अंदर पानी भरा, वो शावर का जो पानी आ रहा है, आपने उस कप में पानी भरा, तो क्या वो कप के अंदर डायरेक्शन है या नहीं है? कप के अंदर जो आपने पानी कलेक्ट किया, उसके पास डायरेक्शन है या नहीं है? नहीं है. एग्रीड. तो जो आपने कप के अंदर लिया, उसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स. समझा कि नहीं समझा? सपोज आपने विंडो खोला, आपका जो विंडो रहेगा, घर का विंडो आपने खोला, हवा आ रही है, तो आप क्या बोलते हो? हवा तेजी से आ रही है या कम आ रही है? आपसे उतना ज्यादा आ रही है कि कम आ रही है? क्या आप बोलते हो कि हवा मेरे चेहरे पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है? नहीं. आप सिर्फ इतना बोल पाते हो कि ज्यादा हवा आ रही है कि कम हवा आ रही है. यानी कि आप सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, आप डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं. ये कब होता है? जब वो आपके चेहरे पे लगती है तो आप बोल पाते हैं. आप समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? जब पानी कप के अंदर गिरता है तो ही आप बोलते हैं कि ये भाई इसके पास डायरेक्शन नहीं है. ये फिर क्वांटिटी बन जाती है. जो चीज ऊपर से नीचे आ रही थी, जिसके पास डायरेक्शन थी, जैसे आपने उसको कप में ले लिया, क्या हो गया? उसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं हुई. जब डायरेक्शन गुल हो जाती है तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं. दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? जब उसकी डायरेक्शन गुल हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. अब ध्यान से सुने. सबके पास छाता होगा, घर पे छाता होगा, तो छाता खोलेंगे आप आज. छाता खोलो, घर में ढूंढो छाता किधर है भाई, मेरे को छाता चाहिए. छाते का जो हैंडल होता है, सो व्हेनेवर आई से अम्ब्रेला का हैंडल, सो दिस इज द अम्ब्रेला, वेरी बैड ड्राइंग बट काइंडली, इसका जो हैंडल होता है, दैट इज योर एरिया वेक्टर. कौन सा वेक्टर? एरिया वेक्टर. कौन सा वेक्टर? एरिया वेक्टर. तो कोई भी सरफेस का एरिया वेक्टर होता है. कोई भी सरफेस का क्या होता है? एरिया वेक्टर. सो एरिया वेक्टर उस सरफेस से परपेंडिकुलर रहता है. इसलिए आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, अगर ये पहला डायग्राम है तो 3 डायग्राम आपकी स्क्रीन पे है, राइट?
एक डायग्राम सरफेस यहाँ पर है तो इसका एरिया वेक्टर कौन है, उससे परपेंडिकुलर, ये जो एन कैप डाला है वो उसका एरिया वेक्टर है। अगर सरफेस को ऐसे पकड़ा है, ऐसे जैसे एक प्लेट की तरह, तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, यानी कि आप छाते को ऐसा पकड़ेंगे तो छाते का हैंडल यहाँ राइट की तरफ दिखेगा, छाते को आप उल्टा पकड़ेंगे तो हैंडल ऊपर दिखेगा। जिस तरीके से आप उस छाते को पकड़ेंगे, क्या हैंडल छाते को छोड़ के जाएगा? हैंडल टर्नेबल है? नहीं, हैंडल तो फिक्स है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो आज इसको समझने के लिए घर पे एक छाता खोल के बैठ जाओ, किसी ने पूछा तो बोलना हम एरिया वेक्टर देख रहे हैं। जब छाते को खोलते हैं तो जो हैंडल आप पकड़ रहे हैं वो कौन है? एरिया वेक्टर, उसको छोड़ना नहीं है। आप छाते को घुमाओ कैसे भी करो, बट हैंडल कभी भी अपने पोजीशन को क्या करेगा? आपके परपेंडिकुलर ही रहेगा। यस और नो? उस सरफेस से परपेंडिकुलर रहेगा। आप छाते को ऐसा पकड़ेंगे तो हैंडल इधर रहेगा, आप छाते को ऐसा पकड़ेंगे तो हैंडल इधर रहेगा, छाते को ऐसा पकड़ेंगे तो हैंडल इधर रहेगा। तो ये हमेशा क्या बना के जाता है इसके साथ? 90 डिग्री। आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। एरिया वेक्टर will always be perpendicular to the surface, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपके घर का छाता। आई यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि वहां पे जो हैंडल जैसे आप पकड़ेंगे वो 90 डिग्री बनाएगा। आप कैसे भी पकड़ो उसको, आपकी मर्जी। आप सोचो ये जो पिंक कलर का सरफेस है ये आपका छाता है, उसका हैंडल ये एन है, जहां पर भी आपको एन दिख रहा है वो आपका हैंडल है। सो इट डजेंट मैटर हाउ यू कैच इट, however you catch it, the n is going to be perpendicular to it. क्लियर है ये बात? सो लेट्स अंडरस्टैंड मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका एक फॉर्मूला है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज, यस, वेरी गुड जोन, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। नए जमाने का छाता है सेल्फी स्टिक। यस, वेरी गुड। सो जोन हैज कम आउट विद दिस एग्जांपल सेइंग इट इज सेल्फी स्टिक। तो सेल्फी स्टिक आपका एरिया वेक्टर है, ठीक है। सो फ्लक्स इज इक्वल टू बी बार डॉट ए बार। ये फॉर्मूला आपको लिख के रखना है आपके बुक में। प्लीज राइट दिस फॉर्मूला and write this definition and then I will explain. Please write the formula and the definition and these three diagrams quickly. Please draw these three diagrams quickly. क्योंकि ये आपके बुक में नहीं है, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये डायग्राम ड्रॉ करें। आई एम जस्ट गिविंग यू 2 minutes टू ड्रॉ दिस डायग्राम। Please tell me when it is done. Write the formula, write the definition. I have put the unit also. The unit is Weber, given in WB. And also, please put all the three diagrams. That's okay, Sanya, no problem. Yeah. If you have any doubts, you can ask. नो बेटा, इट डिपेंड्स नुसरत कि हम सरफेस को कहाँ कंसिडर कर रहे हैं। अगर नीचे का सरफेस है तो हम नीचे की तरफ कंसिडर करेंगे, अगर हम ऊपर के सरफेस को कंसिडर कर रहे हैं तो आई कैन, इट डिपेंड्स ऑन विच सरफेस आई एम कंसिडरिंग। ऑब्जर्वर की तरफ जो सरफेस होता है, तो अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ये मेरा सरफेस है, अगर मैं पीछे खड़ी हूँ तो ये मेरा सरफेस है, तो मेरा एरिया वेक्टर उसके हिसाब से मुझे चेंज करना पड़ेगा। आई होप नुसरत योर डाउट इज क्लियर। क्योंकि मेरे हिसाब से है कि मैंने अगर इस सरफेस को ऐसे पकड़ा है तो ये ऊपर आएगा, अगर नीचे की तरफ है तो वो मेरे हिसाब से। Yes, Ram. B bar I have already explained. B bar is magnetic field and A bar is area vector.
B bar is magnetic induction करके मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था. B bar is magnetic induction और magnetic flux density. मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करने वाले को B बार बोलेंगे और A बार इज एरिया वेक्टर. कोई भी सरफेस से परपेंडिकुलर जो होता है उसी को हम एरिया वेक्टर कहते हैं. Yeah, I'll give you some other unit also now in some time, but abhi SI unit is Weber. SI unit will be taken as Weber. Tell me when you're done writing. So that is what is magnetic flux. So magnetic flux मतलब क्या होता है? It is B bar dot A bar. So I can write this as dot product जहां आता है, dot product में cos आएगा कि sin आएगा? Scalars vectors आपने किया है, dot में cos आएगा कि sin आएगा? When I say B bar dot A bar, yes, it will come cos. That means this can be written as bar cos theta, right? So flux का formula क्या है आज से? Bar cos theta. B is the magnetic field, A is the area, and theta is the angle between B and A. So let's look at the first diagram. Can anybody tell me यहाँ पे theta कितना है? What is the angle between area vector and magnetic field? Magnetic lines green color के lines हैं और ये जो एरिया वेक्टर है ये आपका n है. So B और A के बीच का एंगल यहाँ पे 0 है. I hope you are getting what I am saying. The angle is 0. What is cos of 0? Cos of 0 क्या है? Cos of 0 is 1. अगर cos of 0 is 1, so flux यहाँ पे क्या होगा? Flux यहाँ पे maximum हो जाएगा क्योंकि cos की value, so answer यहाँ पे bar है. आई होप यू अंडरस्टैंड फ्लक्स मतलब क्या होता है. कप में जितना पानी गिरा उसको फ्लक्स कहते हैं. मतलब ये सरफेस से जितना मैग्नेटिक लाइन जा रहा है, ये देखो मैक्सिमम जा रहा है इसके अंदर से, राइट? सो हम कहते हैं कि फ्लक्स यहाँ पे मैक्सिमम है और उसका वैल्यू बा है. लेट्स लुक एट द सेकेंड डायग्राम टू अंडरस्टैंड बेटर. इस बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही जा रहा है, ये ग्रीन लाइन की तरह ही जा रहा है और एन कैप ऐसा है, तो थीटा यहाँ कितना है? थीटा यहाँ पे 90 है. तो फ्लक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? डू यू एग्री कि फ्लक्स 0 हो जाएगा? क्योंकि cos ऑफ 90 0 होता है. इसका ये मतलब है कोई भी मैग्नेटिक लाइन ये सरफेस के अंदर से नहीं गया. आपको दिख रहा है ना, लाइन अंदर से नहीं गया, ये इसके पैरेलल में जा रहा है. इट हैज टू गो थ्रू, लाइक फर्स्ट केस में देखो इसके थ्रू जाना चाहिए, थ्रू नहीं जा रहा है. तो हम कहते हैं कि फ्लक्स भाई 0 है. यानी कि कप में पानी गिरा ही नहीं. अगर कप में पानी गिरा ही नहीं, कप आपने ऐसा पकड़ लिया, टेढ़ा पकड़ लिया और पानी गिरा ही नहीं, तो आप बोलोगे यार इसमें तो कोई पानी गिरा ही नहीं, तो फ्लक्स क्या बोलोगे? 0. थर्ड डायग्राम देखो, थर्ड वाला. ये आपका ग्रीन लाइंस आपका मैग्नेटिक लाइन है और ये आपका एरिया वेक्टर है.
दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। बी बार और ए बार के बीच का एंगल क्या है? थीटा। यानी कि टेढ़ा पकड़ा है थोड़ा सा, मतलब थोड़े लाइंस जाएंगे, थोड़े लाइंस नहीं जाएंगे। सो कुछ तो एंगल है, मान लो 45 डिग्री है। ओके, मतलब बी बार और ए बार क्या है? कुछ तो एंगल बना रहे हैं, तो फ्लक्स क्या होगा? व्हाट इज कॉस ऑफ 45? कॉस ऑफ 45 कितना है? 1/√2, राइट? सो आप बोलोगे इट इज बी ए अपॉन 1/√2, मतलब द एंगल बिटवीन बी एंड ए बार विल डिसाइड द मैग्नेटिक फ्लक्स, कि क्या वो फुल है, क्या वो जीरो है, कितना बना रहा है, कम बना रहा है, ज्यादा बना रहा है, एंड सो ऑन. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू. Everyone got it? Flux is nothing but BA cos theta. Flux is nothing but BA cos theta. तो अगर थीटा 90 है तो आपका फ्लक्स 0 है, अगर थीटा 0 है तो आपका फ्लक्स मैक्सिमम है, और अगर कोई भी एंगल बना रहा है बी और ए के बीच, देन उसके बीच के एंगल के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है, कम है, ये इसके ऊपर डिसाइड हो जाएगा. I hope this is clear. The first formula of the chapter is in front of you. That is nothing but BA cos theta. That is magnetic flux. अब इसका यूनिट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. इसका यूनिट क्या है? फ्लक्स का यूनिट मैंने वेबर बोला, बट है तो B इंटू ए. बी क्या होता है? बी इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसका डायमेंशन चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में मैंने आपको दिया है एक्चुअली. यू नो बी क्या होता है? फोर्स अपॉन आई इंटू एल होता है, इंटू ए. इज एरिया. ओके, नाउ फोर्स क्या होता है? न्यूटन अपॉन व्हाट इज करंट? करंट इज एम्पियर. लेंथ इज मीटर इंटू मीटर स्क्वायर. तो एक दूसरा यूनिट आ गया इसका. इसका दूसरा यूनिट है न्यूटन मीटर पर एम्पियर. याद रहेगा क्या? इसका दूसरा यूनिट, वेबर तो उसका ऐसा यूनिट है, न्यूटन मीटर पर एम्पियर भी बोल सकते हैं उसको. न्यूटन को जब मीटर मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? एनीबडी? न्यूटन को जब मीटर मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज न्यूटन इनटू मीटर? यस, न्यूटन इनटू मीटर इज जूल. न्यूटन एनएम अगर कहीं पर भी आए, न्यूटन को जब मीटर मिलता है तो क्या बनता है? जूल. तो फ्लक्स का तीसरा यूनिट आ गया जूल पर एम्पियर. 3 यूनिट याद रख सकते हैं आप. एक है न्यूटन मीटर पर एम्पियर, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं टेस्ट लूंगी तो आपको आना चाहिए. 3 यूनिट तो आना ही चाहिए. एक है वेबर, क्योंकि वेबर से आप डायमेंशन नहीं लिख पाएंगे. डायमेंशन के लिए आपको क्या सोच सकते हैं? which is nothing but Newton meter per ampere or joule per ampere. Yeah. न्यूटन मीटर पर एम्पियर और जूल पर एम्पियर दिमाग में गया? वेबर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर और जूल पर एम्पियर. आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू नाउ. तो 3 यूनिट लिख के रखो मैग्नेटिक फ्लक्स का. एक क्या होगा? वेबर. दूसरा क्या होगा? न्यूटन मीटर पर एम्पियर. तीसरा क्या होगा? जूल पर एम्पियर. हो गया? 3 यूनिट लिख के रखा. इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स. तो यूनिट के बारे में डिस्कशन हो गया. इसके फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या याद रखना है? बा कॉस थीटा. आई होप इट्स इन योर हेड नाउ. सो मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया, यानी कि बी का यूनिट देख रहे हैं, जिसको मैंने अभी आपके सामने एफ अपॉन आई एल लिखा, उसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला भी बोल सकते हैं. 1 टेस्ला 10⁴ गॉस होता है. दिस इज 1 टेस्ला विच इज 10⁴ गॉस. ये सीजीएस में है और ये एमकेएस में है.
So 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 gauss is the conversion. अगर मैंने आपको MK से CGS पूछा तो 1 Tesla is 10 to the power 4 gauss. So Tesla higher होता है, मतलब 10 to the power 4 times gauss है. तो 1 gauss क्या होगा? 10 to the power minus 4 Tesla. तो वैसा दोनों लिख के रखे. 1 gauss is 10 to the power minus 4 Tesla. तो ये आपको पता रहना चाहिए, ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है. 2 यूनिट्स बताए जा रहे हैं आपको. एक तो मैंने ऑलरेडी आपको बी का यूनिट यहाँ पर भी बताया, इट इज न्यूटन अपॉन, यहाँ पर आपको बताया गया था, कैन यू सी दिस, न्यूटन पर एम्पियर मीटर. ये भी बी का ही है बिकॉज ये एरिया का है, राइट. सो द अदर 2 यूनिट्स आर वेबर पर मीटर स्क्वायर and Tesla. So I hope you can see Tesla here and Weber per meter square, and this is the SI unit of magnetic field. So please write this, very important. The SI unit of magnetic field is Weber per meter square or Tesla. Magnetic field is Weber per meter square or Tesla. Please write this slide down. Please tell me when it is completed. Gauss is the CGS unit of magnetic field. Chapter number 1, units and measurements. ये नए टर्म्स हैं, आज बहुत कुछ नया सीख रहे हैं आप. सो जब हम यूनिट्स की बात करें तो यू हैव टू रिमेम्बर कि बी के 3 यूनिट है. वन इज नथिंग बट वेबर पर मीटर स्क्वायर, वन इज नथिंग बट टेस्ला, and the CGS of it is Gauss. Yeah, and when we are talking about magnetic flux, there are 3 units. What are the 3 units? One is Weber, the other is Joule per ampere or Newton meter per ampere. So that is the meaning of both of them. And 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gauss. राम बी नहीं बोलेंगे, इट इज बी ओनली, बट वो रिलेशनशिप है. जैसे आप बोलते हैं ना 1 किलोमीटर इज दिस मच मीटर, तो वो कन्वर्जन है उसका. टेस्ला इज द SI यूनिट. टेस्ला इज द SI यूनिट. दशरथ, MKS is bigger than CGS ना. एनी टाइम MKS क्या होता है? किलोमीटर, मीटर, ये सब बड़ा है ना मनीष, कंपेयर टू CGS. ग्राम बड़ा होता है कि किलोग्राम बड़ा होता है? Obviously. So which is bigger, right? Is it over? Have you written the slide down? I hope you've written the slide down. If you've not completed, listen to the lecture once again in the, in the portal, because you'll be able to go ahead with it. You tell me, Mehak, who is bigger? आपके हिसाब से क्या है, कौन बड़ा है? Think about the conversion factor. Yes, correct. So I want you to now come to the bar magnet. ये बार मैग्नेट का दूसरा नाम क्या था? मैं भूल गई. मैंने आपको कुछ नाम दिया था. I forgot what is the name. बार मैग्नेट को आज से बार मैग्नेट नहीं बोलेंगे. यस विधि, अभिषेक, मनीष, महक, यस प्रथम, मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे आप आज से. इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल. आप बार मैग्नेट नहीं बोलेंगे.
So we are going to study what is the bar magnet about, you know. तो आज मैं सिर्फ आपको डायग्राम समझा रही हूँ. ओके. मैग्नेट जब भी आप ड्रॉ करेंगे, सो आपके सामने एक बार मैग्नेट है, जो लाइन इसके, सो आई एम गोइंग टू अज्यूम this is the south pole and I am going to assume this is the north pole, right? Slightly in the बीच में लेते हैं, एकदम पेरीफेरी पे नहीं लेते हम लोग. Okay, so this is the south pole and this is called as a north pole. The line which is passing through this, आपने 10th standard में पढ़ा रहेगा, याद है? इस लाइन को क्या कहते हैं? Anybody remembers what is this line known as? If you remember it, this is called as the magnetic axis. क्या बोलते हैं इसको? This is called as the magnetic axis. The line joining north and south, yes Karthik, is called as the magnetic axis. So this is the magnetic axis. इस magnetic axis से जो perpendicular line जाएगा from the center, so ये center है, इसको आज से हम O बोलेंगे. इसको क्या कहते हैं? Anybody knows this name? इसको कहते हैं इक्वेटर. Yes, Abhishek. This is called इक्वेटर. और ये जो साउथ पोल होता है और नॉर्थ पोल होता है, इसको क्या कहते हैं? पोल्स कहते हैं. तो इसका जो स्ट्रेंथ होता है उसकी जगह पे जो, इसको कहते हैं पोल स्ट्रेंथ. क्या कहते हैं? पोल स्ट्रेंथ. तो अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द साउथ पोल, इट इज -m. What is the pole strength of the north pole? It is +m. What is the strength of the north pole? It is +m. What is the strength of the south pole? It is -m. What is the line passing through north and south pole? It is called magnetic axis. What is the line passing through the center? It is called equator. What is the distance between south pole and north pole? It is called as magnetic length. It is called magnetic length. North और south pole के बीच को क्या कहते हैं? Magnetic length. और पूरे मैग्नेट, फुल मैग्नेट, यहां से लेके एंड तक, इसको कहते हैं geometric length. So I have written lot of things on this and I want you to completely look at the diagram now in a very different way. I have drawn the center of the magnet. Then I have drawn this line which is passing through the north and south pole, which is called magnetic axis. इससे जो perpendicular bisector जा रहा है, उस perpendicular bisector का नाम है equator. The pole strength of the north pole is +m के नाम से जाना जाएगा. It is called the strength of that pole. कितना फील्ड है वहां पे, कितना स्ट्रेंथ है वहां पे. और साउथ पोल का -m बोलेंगे. नॉर्थ और साउथ के बीच आपको दिख रहा है मैंने एक नया नाम रखा है. व्हाट इज इट कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ. और अगर मैं पूरे मैग्नेट ले लूं, फुल मैग्नेट ले लूं, तो उसका नाम है ज्योमेट्रिक लेंथ. The line passing through north and south is called as magnetic axis. Perpendicular bisector is called equator. इसका नाम क्या है? Equator. The strength at each pole is called as what? Pole strength. What is the pole strength of the north pole? +m. What is the pole strength of the south pole? It is -m. What is the length between north and south pole? It is called as magnetic length. And पूरे बार मैग्नेट का लेंथ कितना होता है? It is called geometric length. क्या ये डायग्राम आप बना सकते हैं? You can draw the normal magnet. आपको ये ऐसा ड्रॉ करने की जरूरत, सिंपल एक बार मैग्नेट बनाओ ऐसे, और एक को साउथ बोल दो, एक को नॉर्थ बोल दो. यहाँ पे ऐसा लाइन ड्रॉ करके आप स्टार्ट कर सकते हैं. मतलब एकदम परफेक्ट मैग्नेट बनाने की जरूरत नहीं है. ये नए टर्म्स है, आज बहुत सारे नए टर्म्स पढ़े, तो आपको वीडियो एक बार और सुनना पड़ेगा. The distance between the north and the south pole, Krishna, is called magnetic length.
और अगर आप पूरा, बिकॉज हम नॉर्थ पोल एकदम एंड में नहीं लेते, थोड़ा सा अंदर लेते हैं, बिकॉज फील्ड जो डायरेक्शन होता है ना, फील्ड जो होता है वो कुछ इस तरीके से इमेजिन होता है कि यहाँ से फील्ड चालू हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड. सो देन वी से द फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एट द पोल्स. याद है, आपने ये पढ़ा रहेगा 10th स्टैंडर्ड के, फील्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एट द पोल्स एंड इट गेट्स वीकर एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट. मैग्नेट के सेंटर में इतना, अगर आप आयन फाइलिंग्स डाल देंगे ना, तो वो कॉर्नर्स पे बहुत जम जाएगा. ये आपने 10th में पढ़ा रहेगा कि आप एक मैग्नेट को ड्रॉप कर दो तो सारी चीजें कहाँ चिपकती है, सेंटर पे चिपकेगी कि कॉर्नर पे ज्यादा चिपकेगी? कॉर्नर्स पे ज्यादा चिपकेगी सेंटर से ज्यादा, राइट? सेंटर खाली हो जाता है थोड़ा सा, सो ज्यादा कहाँ पे चिपकेगा? कॉर्नर्स पे ज्यादा अट्रैक्ट होगा और कॉर्नर्स पे आपको फील्ड ज्यादा दिखेगा. दैट्स व्हाई वी से द डिस्टेंस, वो एकदम कॉर्नर पे नहीं लेते, उसको थोड़ा सा अंदर लेते हैं. आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि कॉर्नर पे लेंगे तो फील्ड कैसे दिखाएंगे आप? या ओके. सो मैग्नेटिक लेंथ इज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, and otherwise we take it between this. Is it done? एरिया वेक्टर हर चीज में लिया जाएगा महक, हर चीज में. जब पूरे फिजिक्स की बात आती है तो जहां पर भी डायरेक्शन की बात, आई थिंक यू हैव डन दिस इन स्केलर्स वेक्टर्स. आपने वहां पे थोड़ा ए बार बी बार, दो वेक्टर के बीच कॉस साइन, राइट? सो हर चीज में हम लोग लेंगे बेटा. पूरे फिजिक्स में जब भी हमें कैलकुलेशन करना है, हर चीज में हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए ना. आपने पढ़ा रहेगा यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, राइट? आई होप यू आर गेटिंग इट महक. हमने ये सब, आपको चैप्टर्स को कोरिलेट करना है फिजिक्स में, कोई भी चैप्टर इंडिविजुअल नहीं रहता है. यस 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 बेटा, यस करेक्ट. यूनिट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर पढ़ा रहेगा ना आपने. यस या प्रीतम, पूरा मैग्नेट का जो लेंथ रहता है उसको हम ज्योमेट्रिक लेंथ कहते हैं. मतलब आप एक मैग्नेट को हाथ में पकड़ते हैं तो जितना, अगर वो 5 सेंटीमीटर का मैग्नेट है पूरा, तो आप उसको क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक लेंथ बोलेंगे. ठीक है, दोनों के बीच एक रिलेशन है. मैंने वो रिलेशन, मैं नेक्स्ट आपको वही बताने वाली थी कि दोनों के बीच एक रिलेशन है. मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ के बीच का ये रिलेशन है. क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें, हो गया सबका, सबने ड्रॉ कर दिया. कैन आई मूव ऑन? यस. सो मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ के बीच का जो रिलेशन है, सो ये मेरा मैग्नेट है और ये मेरा, मान लिया कि मैंने ये दो पॉइंट्स लिए हैं, ये मेरा सेंटर है. तो ये क्या हो गया? मेरा O है. ये मेरा, लेट्स से साउथ पोल है तो -m लिखेंगे, नॉर्थ पोल है तो +m लिखेंगे. सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस L होता है, L मानेंगे, और यहां से यहाँ तक का डिस्टेंस L मानेंगे. तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2L हो गया. ये 2L को हम क्या बोलते हैं? ML, मतलब मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं. और ये वाला जो डिस्टेंस है, जो पूरा मैग्नेट का डिस्टेंस होगा, ये, इसको हम GL बोलेंगे आज से. GL कौन है? ज्योमेट्रिक लेंथ. आप दोनों के बीच एक रिलेशन है. फिजिक्स कहती है कि मैग्नेटिक लेंथ, यानी कि आपका 2L इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ. ये आपको समझना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा. Ram, I have already sent. I do not know. You'll have to contact sir. I have sent.
They will upload it soon. Yeah. So you have the pole strength of south as minus m and the pole strength of north as plus m. सेंटर से लेके साउथ पोल तक एल होगा, सेंटर से लेके नॉर्थ पोल तक एल होगा, ये माना जा रहा है। एंड दिस इज द टोटल लेंथ इज गोइंग टू बी टेकन एज 2l। सो ये डायग्राम आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। ज्योमेट्रिक लेंथ मतलब फुल लेंथ, इसके एंड से लेके उस एंड तक, इस कॉलेज ज्योमेट्री के हिसाब से वाला लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से जो लेंथ है, that is called as ml, which is equal to 2l. And what is the relation between both of them? The relation is magnetic length is 5/6 of geometric length. Magnetic length is 5/6 of geometric length. So distance between the two poles of the magnet will be called as magnetic length. The distance between the two poles of a magnet is called as magnetic length. एंड द एंटायर जो पूरा लेंथ होता है मैग्नेट का, उसको हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक लेंथ कहते हैं। और पोल स्ट्रेंथ याद रखना है, पोल स्ट्रेंथ विल बी प्लस m and minus m. So plus m for north pole and minus m for south pole. I am on page number 222 of the textbook. So I have completed today 221 and 222 of the textbook up till 12.3. 12.3 बार मैग्नेट तक मैंने आज कंप्लीट किया है। आप प्लीज रिवाइज करके आए नेक्स्ट लेक्चर के लिए, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। सो वी हैव टू प्रोसीड विद द डेरिवेशंस इन द फर्दर लेक्चर्स. So I hope you will revise whatever I have taught you. You will listen to the video again, and then we can proceed with the chapter. Okay, so that's it from me today. Thank you very much for attending the lecture. See you in the next lecture.